Hello students, I Anupam Nidhi from Ismail Girls National Inter College, Shastri Nagar, Meerut. I am going to teach you a chapter of our course, The Homecoming by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, as you know, was a Bengali polymath, a writer, a composer, a poet, a playwright and so on. He was the first Indian who got the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of songs, the Gitanjali. Two countries owe their national anthem to Rabindranath Tagore. One is India. Our national anthem, Jan Gan Man, is written by Rabindranath Tagore. And the national anthem of Bangladesh, Amaro Sonaro Bangla, is also written by Rabindranath Tagore. He was really a versatile genius. In this story, he is speaking about a child of 14 years who is sent away from his home and he longs for his home. He wants to return to his home, and in the end is very tragic. He dies longing for his home. There are several crossroads that involve the homecoming of Pathik, who is the hero of the story, symbolically and literally. So let us read the chapter. Pathik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. So who was Pathik Chakravarti? He was the ringleader, the captain of the gang. सरदार था वो गैंग का among the boys of the village. गांव के लड़कों के बीच. A new mischief, एक नई शैतानी got into his head, उसके दिमाग में घुसी. There was a heavy log. Log means लट्ठा, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा. एक बहुत heavy लट्ठा था, लाइन पड़ा हुआ on the mud flat, समतल भूमि पर of the river, नदी की, waiting to be shaped. वो इंतजार कर रहा था कि उसे आकार दिया जाए into a mast means मस्तूल, जो जहाज के बनाए जाते हैं नाव के, for a boat, एक नाव के लिए. He decided, उसने निर्णय किया that they should all work together, कि वे सब साथ साथ काम करेंगे to shift the log, उस लॉग को हटाने के लिए by main force, पूरी ताकत से from its place, अपनी जगह से and roll it away, और उसे लुढ़का कर ले जाएंगे. The owner of the log, लॉग का जो ओनर मीन्स मालिक था, would be angry, नाराज होगा, and surprised, और आश्चर्यचकित होगा, and they would all enjoy the fun, और वो सब इसका आनंद लेंगे. Everyone seconded the proposal, हर एक ने उस प्रपोजल का, उस प्रस्ताव का seconded माने समर्थन किया, and it was carried, और ये ले जाया गया unanimously, सर्वसम्मति से. So Pathik Chakravarti was the captain of the gang. He was the captain. He was a very notorious type of boy. One day he decided to roll away the log so that the owner of the log may be angry and surprised, and they would have the fun. But just as the fun was about to begin, लेकिन जैसे ही वो फन मजा शुरू होने वाला था, माखन, Pathik's younger brother, Pathik का छोटा भाई, sauntered up means walked slowly, धीरे धीरे आया, and sat down on the log, और log पर लट्ठे पर बैठ गया, in front of them, उनके सामने, all सबके, without a word, बिना कुछ भी कहे. The boys were puzzled माने परेशान, लड़के परेशान हुए, for a moment, एक क्षण को. He was pushed rather timidly माने डरते हुए, उसे डरते हुए by one of the boys, एक लड़के के द्वारा उसको धक्का भी दिया गया, and told to get up, और उसको कहा गया कि वो उठ जाए. But he remained quite unconcerned, लेकिन लगा कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा. He appeared, वो लग रहा था, like a young philosopher, एक छोटा सा दार्शनिक की तरह, meditating, जो ध्यान लगा रहा हो, on the futility माने निस्सारता, व्यर्थता पे, of games, खेलों की. Pathik was furious means नाराज, angry, Pathik नाराज हो गया. माखन, he cried, वो चिल्लाया, माखन, if you don't get down, अगर तुम नहीं उतरे, this minute, इस मिनट,
I shall thrash you, तो मैं तुम्हें पीटूंगा. माखन only moved to a more comfortable position, और माखन और थोड़ा ज्यादा ही आरामदायक पोजीशन तक पहुंच गया. If Phatik was to keep his regal dignity, regal माने राजसी, dignity माने शान. अब अगर फटिक को अपनी राजसी शान बनाए रखनी थी, यानी कि इफ ही हैज टू कीप हिज पोजीशन बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने, इट वॉज क्लियर, स्पष्ट था, ही ऑट टू कैरी आउट माने पालन करना, तो उसको निभा लेना चाहिए था, पालन कर लेना चाहिए था हिज थ्रेट, अपनी धमकी का. बट लेकिन हिज करेज फेल्ड हिम, उसके साहस ने उसको फेल कर दिया एट द क्राइसिस, नियत समय पर. हिज फर्टाइल ब्रेन, उसके उपजाऊ दिमाग ने, हाउएवर, खैर, रैपिडली, जल्दी से, सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन ओवर, एक नया तरीका ढूंढ लिया, विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को डिस्कम्फर्ट माने बेचैनी दे देगा, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके अनुयायियों को प्रदान करेगा, एडेड, थोड़ा सा जुड़ा हुआ, एडेड माने वैसे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे अतिरिक्त, एम्यूजमेंट, मनोरंजन. ही गेव द वर्ड, उसने आदेश दिया, ऑफ कमांड, टू रोल द लॉग, लट्ठे को खिसकाने का, एंड माखन को ओवर टुगेदर, साथ साथ. ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो देखिए इसमें लेखक कहता है कि नाउ इट हैड बिकम कंपल्सरी फॉर फटिक टू कीप हिज वर्ड्स, टू मेंटेन हिज पोजीशन, बट हिज करेज वॉज लैगिंग हिम बिहाइंड. His active mind, his fertile brain means his active mind, in that situation at once caught upon a new trick which would defeat his brother and allow his attendants an increasing entertainment. He ordered then to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order. Makhan ने ये आदेश सुना and made it a point of honor, और इसे सम्मान का पॉइंट बना लिया, तो स्टिक ऑन, चिपके रहने का. मतलब माखन वहां से हटा नहीं, क्योंकि दैट वाज द प्रेस्टीज ऑफ माखन आल्सो. बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को ओवरलुक कर दिया, लाइक दोज, उनकी तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो दूसरे मामलों में जो ये सांसारिक यश होता है उसी में लगे रहते हैं. दैट देयर वॉज पैरिल इन इट, पैरिल मीन्स डेंजर, खतरा, कि इसमें खतरा था. ही कुड नॉट सी दोज थिंग्स विच वर रिलेटेड टू द बबल रेपुटेशन एंड द रिस्क विच कुड हैव फॉल अपॉन हिम. द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग. अब जो लड़के थे वो उस लट्ठे के पास पहुंच गए विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, एंड द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जैसे ही गो हुआ वो लट्ठा खिसकने लगा, एंड विद इट, और इसी के साथ, वेंट, चली गई, माखन्स फिलॉसफी, माखन का दर्शन, ग्लोरी, शान, एंड ऑल, और सब कुछ. ऑल द अदर बॉयज, बाकी दूसरे लड़के, शाउटेड themselves hoarse, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, with delight, खुशी से, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था. But Phatik was a little frightened, पर फटिक थोड़ा डर गया. He knew, वो जानता था, what was coming, कि क्या होने वाला है. And sure enough, और काफी निश्चित रूप से, माखन rose from mother earth, माखन वो जो धरती माँ थी उससे उठा, blind as feet, भागी की तरह, and स्ट्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, और गालियां बकते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, ही रश्ड एट फटिक, वो फटिक पर झपटा, एंड स्क्रैच, और नोच डाला, हिज फेस, उसका चेहरा, एंड बैट हिम, और उसे मारा, एंड किक्ड हिम, उसको लाते मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोता रोता घर चला गया. द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वॉज ओवर. ये जो पहला एक्ट था ड्रामा का वो पूरा हो गया. फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने, वाइप मीन्स पोंछा, हिज फेस, अपना चेहरा, एंड सेट डाउन ऑन द एज, और कगार पे बैठ गया, ऑफ ए संकन, एक डूबी हुई बाढ़, छोटी सी नाव के, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगेन टू च्यू, और चबाने लगा, ए पीस ऑफ ग्रास, घास का तिनका. ए बोट केम अप, एक नाव आई, टू द लैंडिंग, मतलब वहां पे उसने लंगर डाला, एंड ए मिडिल एजेड मैन, एक मध्य मतलब प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, सफेद बालों वाला, एंड डार्क मुस्टैच,
काली मूछों के साथ, स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे पे आया। ही सॉ द बॉय, उसने लड़के को देखा, सिटिंग, बैठे हुए, देयर, वहां, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करते हुए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। सो व्हाट हैपेंड? आफ्टर क्लीनिंग हिज फेस, फटिक sat on the river bank and started chewing a piece of grass. Just then a boat came on the river bank, and a middle-aged man with grey hair and dark moustache came to him and asked where the Chakravartis lived. Phatik went on chewing the grass. Phatik अपना वो घास का तिनका चबाता रहा. He did not answer. And said, बोला, over there. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, पर यह बिल्कुल असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किधर इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने दोबारा पूछा। हिज लेग्स, स्वंग माने हिलाना, वो अपने पैर हिलाता रहा, टू एंड फ्रो, इधर उधर, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस नाव के तरफ, एंड सेड, और बोला, गो जाओ, एंड फाइंड आउट, और ढूंढ लो, एंड कंटिन्यू टू च्यू ग्रास, और घास चबाता रहा, एज बिफोर, पहले की तरह। बट लेकिन नाउ ए सर्वेंट केम डाउन, एक सर्वेंट आया फ्रॉम द हाउस, घर से, एंड टोल्ड फटिक, और उसने फटिक को कहा, हिज मदर वांटेड हिम, कि माँ उसे बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर, पर सर्वेंट बहुत होशियार था, वो गुरु था, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। He took फटिक अप, उसने फटिक को उठाया, रफली, मतलब रफली, एंड कैरीड हिम, और उसे ले गया, किकिंग, मतलब लाते मारता हुआ, मतलब वो संघर्ष कर रहा था, एंड स्टर्लिंग, संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट, एक बदतमीजी भरे, रेज, गुस्से के साथ, मतलब वो उसे घसीटते हुए, पटकते हुए ले ही गया। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर आया, हिज मदर सॉ हिम, माँ ने उसको देखा, शी कॉल्ड आउट, और उसने कहा एंग्रीली, गुस्से से, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुम दोबारा माखन को मार रहे थे। फटिक आंसर्ड, फटिक ने जवाब दिया, इंडिग्नेंटली, बहुत ही नाराज, धीरता के साथ, नो, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू, किसने बताया। हिज मदर शॉटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं कह रहा हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट, पर माखन को लगा ये बेस्ट है, टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि वो अपने पिछले स्टेटमेंट्स पर अडिग रहे। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, फटिक हेट मी, फटिक ने मुझे मारा। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, माने खत्म होना। फटिक का जो पेशेंस, धैर्य था, वो ऑलरेडी पहले ही एग्जॉस्टेड, खत्म हो चुका था। He could not hear this, वो इसे सुन नहीं सका, इस injustice, अन्याय को। He rushed, वो झपट पड़ा, at माखन, माखन को, and hammered him, और हैमर वैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पे मतलब वार करना उसने शुरू कर दिया, with willows, घूसों के साथ। Take that, ये ले, he cried, वो चिल्लाया, and that, ये ले, and that, और ले, for telling lie, झूठ बोलने के लिए। His mother took माखन's side, उसकी माँ ने माखन की साइड ली, इन ए मूवमेंट, एक क्षण में, एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को पीछे खींचा, बीटिंग हिम विद हर हैंड, अपने हाथ से मारते हुए। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उसको धक्का दिया, शी शाउटेड, तो वो चिल्ला उठी, व्हाट यू लिटिल विलन, अरे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे।